السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم شام میں دیکھتے ہیں جہاں کا نماز گمشتگین سے پوچھتا ہے الہ قلعے میں کیا آپ کو وہ چیز مل گئی جو آپ ڈھونڈ رہے تھے گمشتگین؟ یہ سن کر گمشتگین کہتا ہے فکر نہ کرو امیر کا نماز، میں اسے اس دن کے لیے برسوں سے تیار کر رہا ہوں۔ ہم اب انتخابات کے لیے میز پر ایک اضافی نشست شامل کریں گے۔ یہ سن کر امیر کا نماز کہتا ہے تمہارے فتنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گمشتگین۔ اس لمحے وزیر صلاح الدین اور باقی سب وہاں پر آ جاتے ہیں اور اصفہانی ان کے بیچ آ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب قدس میں بالین اور سبیلا سے ولیم کہتا ہے ایبلن کے کونت بالین اور قدس کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی سبیلا، آپ انقریب اپنی زندگی کو میاں بیوی کے بندھن میں باندھیں گے۔ یہ شادی نہ صرف آپ کی زندگیوں کو جگجا کرے گی بلکہ ساتھ ہی یہ قدس کے نئے بادشاہ کا تعین بھی کرے گی۔ لارڈ گائے شیٹیلیون اور باقی سب بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ولیم مزید کہتا ہے بادشاہ امارلے کا تاج آپ کی بادشاہی کا اعلان کرے گا۔ اس لمحے ماریا کے ساتھ وہاں آنے والا بالڈون کہتا ہے جلدی مت کرو ولیم، میں بادشاہ امارلے کا بیٹا شہزادہ بالڈون ہوں۔ میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں تخت پر اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سبیلا، بالین اور ولیم چونک جاتے ہیں اور پھر ماریا کہتی ہے آپ کے خوبصورت دن پر اس طرح خلل ڈالنے پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ کونت بالین اور ولیم کو اپنے مستقبل بادشاہ بالڈون کے حکیم کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولیم، سبیلا اور بالین کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ہم شام میں دیکھتے ہیں جہاں دیوان لگا ہوتا ہے، سب امیر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اصفہانی کہتا ہے آج اس دیوان میں جو فیصلہ ہوگا یہ ریاست کی بقا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تخت کے نائب کا انتخاب ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی ایسا ہے جو اپنا فیصلہ بدلنا چاہتا ہو؟ مگر کوئی بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، چار چار ووٹ برابر ہی ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر اصفہانی کہتے ہیں نتیجہ پہلے کی طرح ہی ہے، اور ایسی صورت میں تو گمشتگین ایک دم سے کہتا ہے وزیر حضرت یہ پہلے کی طرح نہیں ہے، ایک ووٹ لاپتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میز پر ایک اور نشست شامل کریں۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جنگی ریاستوں کی سرحد کے اندر ہر وہ شخص جسے ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو پھر آپ کا مطلب کون ہے؟ تو گمشتگین کہتا ہے وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا، حکم اور فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نشست اور انتخابی نشانات وہاں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ سب لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ آنے والا شخص ہے کون۔ دوسری جانب شام میں شمسا اپنے ہار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی لمحے کو یاد کرتی ہے جب وزیر صلاح الدین نے اسے یہ ہار پہنایا تھا۔ اس خیال کے بعد شمسا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اسی لمحے زمرد وہاں پر آ کر کچھ دوا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے میں نے آپ کی بیماری کے لیے جڑی بوٹیوں کے مرکب سے دوا تیار کی ہے۔ شمسا خاتون، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں ضروری احتیاط کرنی چاہیے۔ تو شمسا اس سے کہتی ہے تمہارا اس قدر اچھی سوچ کے لیے شکریہ، تم نے میرے لیے بہت محنت کی ہے۔ تم نے مرکب میں کیا ڈالا ہے؟ میں اسے کیسے استعمال کروں؟ تو زمرد کہتی ہے میری دادی جڑی بوٹیوں کی ماہر تھی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے مجھے تمام جڑی بوٹیوں کے بارے میں سکھایا تھا، میں نے ان سے زہر اور تریاق سیکھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شمسا کو دوا دے دیتی ہے اور شمسا دوا پی لیتی ہے، جبکہ زمرد خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ دیوان کے اندر اور کوئی نہیں بلکہ گوک بورو ہی داخل ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہی بورو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جبکہ وزیر صلاح الدین بھی اسے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر گوک بورو کہتا ہے میں اربیل صاحب علی کوچک کا وارث مظفر الدین گوک بورو ہوں، جسے مردہ سمجھا گیا، جس کے حقوق چھین لیے گئے اور جس کی زندگی غداریوں اور سازشوں سے برباد ہو گئی، وہ گوک بورو ہوں۔ وہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں برتتا، یہی اس اللہ کی حکمت ہے۔ وقت بدل گیا ہے جس کے لیے میں نے خون بہایا اور جس نے مجھے بلا دیا، اس ریاست کی تقدیر اب میری مٹھی میں ہے، اب فیصلہ مظلوموں کے لیے ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ نشست پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور انگوٹھی کو ایک سائیڈ پر کرتے ہوئے تسبیح کو اٹھا لیتا ہے۔ بازی پلٹ جاتی ہے اور گمشتگین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر بورو غصے کے ساتھ جب گوک بورو کی جانب بڑھنے لگتا ہے مگر قاضی فاضل اسے روک لیتے ہیں۔ عمر ملا، اصفہانی، وزیر عماد اور باقی سب کے سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اصفہانی کہتے ہیں اربیل کے وارث کو ہمارے دیوان میں رائے دہی کا حق حاصل ہے، اس کے ووٹ سے سعد الدین گمشتگین سلطان صالح اسماعیل کے تحت کے نائب مقرر کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین جب تک کہ شہزادہ اسماعیل بڑا نہیں ہو جاتا گمشتگین ہی سلطان ہوں گے، حکم اسی کا ہی ہوگا، فیصلہ اسی کا ہوگا۔ اور پھر اصفہانی مزید کہتے ہیں اللہ انہیں ہماری ریاست اور پوری امت
उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैर का वसीला बनाए। नायब बनते साथ ही गुमुश्तकीन बोल पड़ता है, हर कोई सुन ले और जान ले कि तख्त के नायब और सुल्तान साले इस्माइल के नाम से मेरा ये पहला फैसला है। पहला फैसला रियासत की सलामती और क़यादत की तकसीम को खत्म करने के लिए जंगियों के मलक पर लालच की नजर रखने वाले सलाहुद्दीन अयूबी के लिए शाम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गुमुश्तकीन की जानिब देखने लग जाते हैं। गुमुश्तकीन कहता है, फैसले पर अमल फौरी किया जाए। सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम शाम में देखते हैं वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों और उमर मल्ला के साथ बैठे हुए होते हैं। बोरू कहता है, गुमुश्तकीन का हुक्म नहीं मानते भाई, शाम हमारा शहर है, अगर जरूरत पड़ी तो लड़ते हैं मरते हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इजलास से निकलने वाला फैसला वाजे है। तो बोरू परेशान होते हुए कहता है, आह गोक बोरू आह। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे तजस्सुस है कि उसे अंदाजा है भी या नहीं, हम नहीं जानते कि हम किस तरह के मंसूबे में हैं। गुमुश्तकीन कौन सी चालें चल रहा है ये वाज़ेह नहीं। और फिर काराकोश कहता है, हम बरसों कैद में रहे, कौन जानता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। बज़ाहिर गोक बोरू अपने अकल खो बैठा है। और फिर कारातेगन कहता है, चूंकि हमारे पास वक्त मौजूद है तो हम उस लानती के खेल को बर्बाद करते हैं। आंखों में आंखें डालकर उस बदमाश ने मेरे बांझे को अपने कब्जे में ले रखा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये जगह कायरा जैसी बन जाए, मैं ये नहीं चाहता। हमें फौरन कायरा पहुंच कर जो करना है उसके बारे में वाज़ेह तसल्ली के साथ सोचना चाहिए। जो हमारा है हम उसे यकीनन हासिल कर लेंगे। इसी लम्हे अस्फहानी और वजीर अमाद वहां पर आते हैं। अस्फहानी कहते हैं, गुमुश्तकीन ने नायब होने के नाते दूसरा हुक्म भी दे दिया है। इमाद, मैं और उमर मल्ला महल से दूर कर दिए गए हैं। ये सुनते साथ ही उमर मल्ला मुस्कुरा देते हैं और वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ऐसा होगा ये वाज़ेह था। अस्फहानी कहते हैं, गुमुश्तकीन सुल्तान इस्माइल के पीछे छुपकर माजी समेत हर चीज को बर्बाद करने के अज़म के साथ नजर आ रहा है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन उमर मल्ला से कहते हैं, इमाद और अस्फहानी के साथ कायरा आएं और मिस्र में मुत्तहिद होते हैं। तो उमर मल्ला कहते हैं, लेकिन किसी का शाम में रहकर इस शहर की हिफाजत करना जरूरी है, ये जिम्मेदारी हम पर पड़ती है। और फिर वजीर इमाद कहते हैं, उमर मल्ला आप हक बजानिब हैं, जब आप शाम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तो फिर उस लांती के साथ रहें, तुम अपनी जिम्मेदारी इसी तरह जारी रखोगे कारातेगन, जो भी करके गुमुश्तकीन का इत्मीनान जीतो। तो कारातेगन कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो सलाहुद्दीन, तुम्हारी आंखें यहाँ के लिए परेशान मत हो, मेरा शहजादा बांजा मेरे सुपुर्द है। इसके साथ ही वजीर सलाहुद्दीन उठते हैं और अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अंदर महल में गुमुश्तकीन कानेमाज और गोकबोरू के साथ मौजूद होता है और कहता है, तुमने सब कुछ सिरे से बदल दिया है गोकबोरू, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ। ये सुनकर गोकबोरू कहता है, मैंने ये अयूबियों को रास्ता न देने के लिए किया है। और फिर कानेमाज को देखते हुए कहता है, वरना मेरा इन जैसे गद्दारों का साथ देने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर कानेमाज कहता है, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन हमें अब माजी को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो गोकबोरू कहता है, इस तरह आसानी के साथ मेरे हाथों से निजात नहीं है। तुम्हारे फितने की वजह से मैंने अरबेल अमारत और अपने खानदान को खो दिया, तुम अपने किए का हिसाब दोगे। ये सुनकर गुमुश्तकीन कहता है, मैं तुम्हारे आपस के हिसाब किताब में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन हमने सलाहुद्दीन के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया है, अब इत्तेहाद को तोड़ने का नहीं बल्कि मजबूत करने का वक्त है। तो गोकबोरू कहता है, हर चीज की तरह इंतकाम का भी एक वक्त होता है। मैंने कैद खाने में इंतजार करने का तरीका सीखा है। अभी के लिए मेरी वाहिद शर्त इस इत्तेहाद पर सलीबियों का साया ना पड़ना है। ये सुनकर गुमुश्तकीन कहता है, यहाँ पर ऐसी वैसी बात करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं कुद्स के लिए अमन कायम करने के लिए पुरअज़म हूँ। तो गोकबोरू कहता है, नायब आप हैं, जो रास्ता आपको ठीक लगता है उस पर चलें, लेकिन मत भूलना मेरी नजरें तुम पर हैं। कानेमाज, अगर जाती मफाद या किसी वजह से तुम उनके साथ इस तरह से तावन करते हो जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। ये सुनकर गुमुश्तकीन उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या तुम नई जिंदगी देने वाले मोहसन को धमकी दे रहे हो। ये सुनकर गोकबोरू कहता है, जैसे समझना है वैसे समझो। इंसान को अपने सबसे करीबी लोगों की गद्दारी देखने के बाद किसी को भी ऐ वल्लाह कहने का दिल नहीं करता। ये कहते साथ ही गोकबोरू वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब कुद्स में विलियम और बेलियन एक तारीख जिंदान में कैद होते हैं। विलियम कहता है, मारिया ने हर चीज के बारे में तफसील से सोचा है। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करते हैं जब विलियम की अंगूठी दिखाते हुए मारिया ने कहा था, ये अंगूठी लतीफ की लाश के पास से मिली है।
है, ऐसा लगता है कि ये अंगूठी आपसे मंसूब है। तो विलियम ने कहा था, सच है कि ये अंगूठी मुझसे मंसूब है, लेकिन वहाँ पर उसकी मौजूदगी कुछ भी जाहिर नहीं करती। तो मारिया ने कहा था, सिर्फ इतनी सी बात थोड़ी ना है। मुहाफिजों ने हकीम लतीफ के कमरे से सबसे आखिरी में निकलने वाले शख्स आप हो, उन्होंने इसके बारे में गवाही भी दी है, जबकि बाल्डविन भी वहां पर मौजूद था। और फिर इस ख्याल के बाद बेलियन कहता है, हकीम लतीफ, मैं उसे बचा नहीं सका। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने चिल्लाते हुए कहा था, हकीम लतीफ मेरा दोस्त था। तो मारिया ने कहा था, और तुमने विलियम के साथ इत्तेहाद करके अपने ही दोस्त को मार डाला। और फिर लॉर्ड गाय ने फॉर्मूला दिखाते हुए कहा था, मुस्तकबिल के बादशाह बाल्डविन के लिए खसूसी दवा का खुफिया फॉर्मूला। तो बाल्डविन ने कहा था, तुमने मुझे मायूस किया बेलियन। फिर सिपाहियों से कहता है, फौजियों इसे गिरफ्तार कर लो। और फिर इस ख्याल के बाद बेलियन कहता है, वो मेरे पास सलाहुद्दीन की अमानत था, हम क्या करेंगे? क्या हम इन सलाहों के पीछे बैठकर अपनी इस किस्मत के आगे सर झुकाएंगे जो मारिया ने हमारे लिए तैयार की हैं? तो विलियम कहता है, हमें शैतान की शैतानी दिमाग से बचाने वाली वाहिद चीज खुदावंद की रहमत है, हम उससे पनाह लेंगे। और फिर थोड़ी ही देर के बाद सबीला वहां पर आती है और कहती है, मारिया इस हद तक जाएगी, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो विलियम पूछता है, महल की सूरत क्या है शहजादी? तो सबीला कहती है, आपको कैद खाने में डालने के बाद हुजलत में बाल्डविन के तख्त पोशी की तकरीब रखी गई है, मगर जो भी हो जाए बाल्डविन मेरा भाई है, मैं उससे बात करूंगी, वो अपनी गलती से बाज आ जाएगा। तो विलियम कहता है, हम आपकी कोशिश की वजह से आपके मशकूर हैं, लेकिन आप ये जान लें कि आपके सामने अब आपका भाई बाल्डविन नहीं है। मारिया की जानिब से जिसके जहन पर कब्जा किया गया है वो बादशाह बाल्डविन है। दूसरी जानिब शमसा दवा पीते हुए जुमुर्द से कहती है, शुक्रिया जुमुर्द, तुम्हारी दवा हकीकत में मुफीद है। इसी लम्हे लैला वहाँ पर आती है। लैला के आते ही जुमुर्द वहाँ से चली जाती है और फिर शमसा लैला से पूछती है, ये क्या शक्ल बना रखी है लैला? तो लैला कहती है, मुझे जुमुर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है शमसा आपी, बल्कि माजरत सुल्ताना, इसकी आंखें और हरकतों सकनात मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शमसा उसे पास बिठाकर उसे प्यार करते हुए कहती है, क्या तुम शमसा आपी से हसद करती हो? तो जवाबन लैला कहती है, जब भी मैं आपसे मिलने आती हूँ वो हमेशा आपके साथ होती है और आपको बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ती। अब आप मेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ बात करेंगी क्या? तो जवाबन शमसा कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाहिद वो अकेली लैला हो, लेकिन जुमुर्द भी अच्छी लड़की है और हमारी तरह यतीम भी है। क्या तुम्हारे ख्याल में हमें उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? ये सुनकर लैला कहती है, आप हक बाजानिब हैं, मैं माजरत वहाँ हूँ। दूसरी जानिब शाम में उमर मल्ला परेशान बैठे हुए होते हैं। असफहानी कहते हैं, ये कैसी तकदीर है ऐ मेरे अल्लाह, इससे पहले कि हम अपने सुल्तान का सोग मना सकें, हम उनकी जानिब से हमारे लिए छोड़ी गई अजीम तरीन यादगार महल से भी दूर कर दिए गए हैं। और फिर कारातेगन कहता है, दूरी से क्या मुराद है? कोई दूरी नहीं है। उमर मल्ला कहते हैं, कारातेगन ठीक कह रहा है, दूरी नहीं है, मैं आखिरी बार उस महल की सैर करना चाहता हूँ जिसके हर कोने में मेरे सुल्तान की महक है, और मैं मलिक इस्माइल को देखना चाहता हूँ। तो असफहानी कहते हैं, हरगिज नहीं, वो गुमश्तगीन क्या करता है ये वाज़ेह नहीं है उमर मल्ला, वैसे भी उसे अदब से कोई हिस्सा नहीं मिला। और फिर वजीर इमाद कहते हैं, अब अगर वो आपको कुछ कहता है? कारातेगन उनकी बात काटते हुए कहता है, क्या करेगा वो? दरवेश चचा, आप अपने रास्ते पे जाएं, मैं आपके पीछे फौरन आ रहा हूँ, फिक्र न करें, मैं बुरी आंखों को अंधा कर दूंगा और बुरे हाथों को तोड़ दूंगा। ये कहते साथ ही वो उमर मल्ला के साथ आगे बढ़ जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।